to fostering a research ecosystem that addresses our national priorities through rigorous field-based inquiry. May I request Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan Ji, and the dignitaries on the dais to please release the publications. I would also request the respective authors to kindly join us on the dais. First is Beti Bachao, Beti Padhao, evaluation of the social impact of the scheme in Goa by Dr. Aparna P. Loyalkar, Goa University. This book presents a detailed evaluation of the Beti Bachao, Beti Padhao scheme and its impact on the social status of girls in Goa. Next, we have A Journey of Transformation, an assessment of Sukanya Samriddhi and Beti Bachao, Beti Padhao schemes in Tamil Nadu. I request Dr. S. Meena Priyadarshini from Mother Teresa Women's University to join the dignitaries. Based on extensive field research across 5 districts, this book assesses the positive shifts in financial security and healthcare for girl children brought about by these transformative welfare initiatives. The DAV NRLM scheme, Impact of Microfinancing on Entrepreneurial Development of Rural Women in Haryana, by Dr. Nandini Srivastava from Manav Rachna International Institute. The study explores the role of self-help groups in Haryana, documenting how microfinancing has enabled rural women to establish enterprises and improve their social standing despite existing digital and market gaps. Next is From Policy to Practice: Challenges and Prospects of NEP 2020 in Eastern and Northeastern India, by Dr. Soumya Saha from Vivekananda Mission Mahavidyalaya. This publication analyzes the regional implementation of NEP 2020, offering critical insights into institutional preparedness and the future of multidisciplinary learning in Eastern and Northeastern region. And lastly, Breaking Barriers: A Decade of Transforming Financial Inclusion in India, by Dr. Supreet Kaur, University of Delhi. This work examines India's financial inclusion journey over the last 10 years, especially focusing on the impact of digital platforms like UPI and government initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana on marginalized communities. These 5 books are the research publication outcomes of short-term empirical impact assessment research on various schemes and policies of the Government of India. The projects involved extensive field-based research conducted and evaluated by esteemed social scientists, following which the studies have been published by ICSSR. We now move on to a series of digital launches. I would again request the Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan Sir, to please officially inaugurate the ICSSR initiatives. The first is ICSSR Scheme Monitoring Portal, ISMP. The second is the announcement of CAG ICSSR Research Article Competition.
Comptroller and Auditor General (CAG) of India, the Supreme Audit Institution of India, has been providing evidence-based audit reports that ensure transparency, accountability and good governance. The Office of CAG of India, in a first-of-its-kind of initiative, prepared a decadal publication of state finances from the financial year 2013-14 to 2022-23. The Comptroller and Auditor General of India, CAG, and the Indian Council of Social Science Research, ICSSR, have entered into a collaboration to organize the CAG ICSSR Colloquium Series and the CAG Research Article Competition across 28 states and 3 union territories of Bharat. CAG ICSSR Research Article Writing Competition encourages young students in colleges and universities to understand the importance of this data in the context of formulating a research problem, on suggesting the critical gaps in fiscal governance and accountability, whether it relates to public finance or it relates to the government spending in the different social sectors. The prize money is quite exciting, and we hope that students from colleges and universities all over the country would participate in the state level and the national level CAG ICSSR Research Article Writing Competition. The collaboration has 2 parts: CAG ICSSR Colloquium Series in 28 states and 3 union territories, CAG ICSSR Research Article Writing Competition across 28 states and 3 union territories. CAG ICSSR Colloquium Series was launched on 11 November 2025 with the Delhi chapter and the national chapter on 15 December 2025 at CAG headquarters. Following the Delhi chapter, the colloquium was held in Telangana, Punjab, Assam and Manipur on public finance and state finances. The colloquiums are currently being held in different states and union territories of the country. This initiative aims to foster rigorous academic inquiry and policy-oriented research among young researchers, providing them a platform to engage with critical issues of fiscal governance, public accountability and socio-economic development in Bharat. The discussions and deliberations held under the colloquium were centered on the data-rich audit reports presented in the legislative assemblies, thereby linking academic discourse with real-time fiscal accountability and governance. विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी संभव है जब हमारे युवा शोध, ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएं। CAG ICSSR रिसर्च आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन विद्यार्थियों को सार्वजनिक वित्त और शासन से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। मैं सभी युवा प्रतिभाओं को इस पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। The CAG and ICSSR announced the research article writing competition in the august presence of Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan Ji, Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Dr. Vineet Joshi, and Deputy CAG, Shri K.S. Subramanian. With the inspiration of Shri K. Sanjay Murthy, the CAG of India, the bona fide students enrolled in undergraduate, postgraduate and doctoral programs in 28 states and 3 union territories are eligible to send their entries in the competition. The purpose of this competition is to engage young minds in interpreting complex audit findings, fiscal records and governance data, and also to encourage them to contribute in the vision Vikasat Bharat 2047 by translating technical audit material into accessible, analytical and visually engaging research outputs. The best research article will receive a prize money of rupees 75,000 at the state UT level, and the second and the third best entries will receive prize money of rupees 50,000 and rupees 25,000 each. At the national level, the best research article will be awarded the prize money of rupees 1,25,000 and the value of second prize is rupees 1 lakh, while the third carries a value of rupees 75,000.
These prizes will be given to both categories of applicants, that is undergraduate, postgraduate and doctoral. The total prize money for this competition is approximately rupees 1 crore, which is being sponsored by the Office of Comptroller and Auditor General, CAG of India. On the next Audit Divas, 16 November 2026, state awards will be conferred by the respective PAG, AG for each state in their offices, and the national awards will be given at the CAG headquarters, New Delhi. Underscoring the importance of this unique initiative for young scholars, the Honorable CAG of India, Shri K. Sanjay Murthy, stated that the CAG ICSSR Research Article Competition aspires to generate interest in students and research scholars to interpret fiscal and governance data and creatively communicate the information and findings highlighted in various CAG reports for the benefit of citizens. It aims to stimulate an academic and critical interest among students in the fiscal health of the states and the nation, and encourages them to produce evidence-based research papers based on their critical insights from the comprehensive wealth of data created by the CAG. And finally, sir, may I request you to launch the Yuva Shodh Pratibha Research Scheme, special call on youth and decolonization. Yuva Shakti, Rashtrasya Bhavishya Nirmatri. India today stands at the cusp of a knowledge revolution. As the world's largest youth demography, India possesses immense potential for inclusive and transformative growth. National Education Policy 2020 facilitates a knowledge resurgence by transforming educational institutions into knowledge hubs with active research communities. It is building an education system rooted in research, innovation, creativity and society-linked problem solving for the 21st century Bharat, and places young minds and their bold ideas at the center of building a Viksit Bharat by 2047. In the words of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Yuva Shakti is the driving force of India's journey. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's power. As highlighted by Honorable Union Minister of Education, Dharmendra Pradhan, Bharat building is not merely an objective but a national mission. By 2047, a significant share of the global population, particularly the global south, will look towards the Indian development model, placing greater responsibility on India's research and education institutions. Guided by the vision of the National Education Policy 2020, the Indian Council of Social Science Research, ICSSR, is committed to nurturing research from the foundational stages of higher education. It is commonsensical now that the National Education Policy completely revamps and overhauls the education system in the country by emphasizing that education is not merely rote learning but involves critical and creative thinking, where the young students are encouraged to take up research ideas in the 4-year undergraduate program. इसी संदर्भ में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ये पहल है कि जो क्लासरूम में जो टीचिंग है उसको सामाजिक अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए. Aligned with this national vision, ICSSR proudly announces the Yuva Shodh Pratibha Research Scheme for undergraduate students. This initiative will empower 3rd and 4th year undergraduate students to undertake guided research across social science disciplines, bridging classroom learning with research for real world impact. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप ICSSR युवा विद्यार्थियों में शोध संस्कृति को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. युवा शोध प्रतिभा योजना युवाओं को नए विचार, नवाचार
और भारतीय दृष्टिकोण के साथ शोध करने का अवसर प्रदान करेगी। यह पहल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। The Yuva Shodh Pratibha Research Scheme, ICSSR's initiative for young scholars, is designed to cultivate innovation-driven and solution-oriented research. The Yuva Shodh Pratibha Research Scheme, ICSSR's initiative for young scholars, is designed to cultivate innovation-driven and solution-oriented research aptitude among undergraduate students. This scheme shall strengthen their fresh ideas and voices and make them important stakeholders in Vikasat Bharat at 2047. The inaugural theme for Yuva Shodh Pratibha Research Scheme is Youth and Decolonization. Yuva Shodh Pratibha is a visionary research initiative aligned with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's call for Panch Prana, the 5 resolves articulated from the Red Fort on 15th August 2022. Particularly the resolve to shed the colonial mindset and take pride in Bharat's civilizational legacy and heritage. Through 8 transformative themes, Yuva Shodh Pratibha encourages young scholars to rethink history, re-examining Aryan invasion narratives, education, governance, political thought, economy, health and indigenous knowledge systems through an Indian and decolonial perspective, building ideas for a self-reliant and Vikasat Bharat. Finally, it is the moment we all have been waiting for. I humbly request our Honorable Chief Guest, Shri Dharmendra Pradhan Ji, to enlighten us with his kind words of wisdom through the 58th Foundation Day Lecture. ICSSR की 58वां जन्मदिन की अवसर पे मंच पे उपस्थित भारत की डेप्यूटी सीएजी आदरणीय के.एस. सुब्रमण्यन जी, चेयरमैन ICSSR प्रोफेसर मधुकर भाई पड़वी जी, मेंबर सेक्रेटरी ICSR प्रोफेसर धनंजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, शिक्षाविद, यंग रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और मीडिया की साथीगण, मैं आप सबको पहले भारत की इस महान अनुष्ठान की 58 साल की सफल प्रवास में आप लोगों की सहयोग और सहभागिता के लिए आज की उपस्थिति में रह के इसको प्रमाणित किया है। आपकी प्रतिबद्धता भारत की सोशल साइंस और विशेष करके ICSSR के प्रति है। मैं आप सबको पहले बधाई देता हूं। और 58 फाउंडेशन डे के अवसर पे अनेकों नया आयाम को जोड़ा गया। 5 विषय के इम्पैक्ट एनालिसिस के ऊपर रिसर्च पब्लिकेशन, CAG जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके आने वाले दिनों में शायद मेरे ख्याल से पहली बार CAG भारत सरकार की इस प्रकार की क्रेडिबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके अपने कामकाज को, ऑडिटिंग को, सोशल स्पेंडिंग को, फाइनेंशियल स्पेंडिंग को, डेमोक्रेसी में हम जितना अकाउंटेबल कर पाए उतना ही अच्छा है। मैं CAG को भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ICSR के ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से ओपन किया कि मेरे कामों के बारे में स्टेट्स की परफॉर्मेंस अप्राइजल भी यंग रिसर्चर के द्वारा हो और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग भी उन्होंने किया है। आपको बहुत बहुत बधाई है। मित्रों, आज अन्य कार्यक्रम के उपरांत युवा शोधकर्ता भारत में आज हम लोग 2047 के लक्ष्य लेके जब चलते हैं, 1835 के बाद, ऐसे तो 1000 साल से अभी
कुछ महीना पहले हम लोगों ने याद किया 1026 में सोमनाथ के ऊपर आक्रमण हुई थी। पहला इन्वेजन भारत की सिविलाइजेशन के ऊपर हुई थी, भारत की सांस्कृतिक केंद्र पे हुई थी। और 2026 ये 1000 साल की एक प्रकार से एक अग्रेसर्स के द्वारा प्रभावित हमारी सामाजिक जीवन रहा। भले ही हमको पिछले लगभग 78-79 ईयर से ब्रिटिश कॉलोनी से हमको मुक्ति मिली है, लेकिन पिछले 1000 साल हमारे लिए एक ब्लैक एरा ऐसे मैं मानता हूं। और अभी बीते काल उसी चेन में रिसर्जेंस की, आत्मविश्वास की, आत्म परिप्रकाश की जो मुहिम 1947 के बाद हुई, कल उसकी एक ऐतिहासिक दिन था। 1951 में तत्कालीन नेतृत्व, विशेष करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की गरिमामय उपस्थिति से 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, नई रूप आकार लिया था। हम सब के लिए गौरव की विषय है। कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत की लंबी 1000 साल की कालखंड में वो एक स्टेटमेंट रहा। ऐसे भारत की सभ्यता की इतिहास महाभारत और पौराणिक कालों से गिना जाता है। वेद की आयु लगभग गंगाधर तिलक जी को मैं कोट करूं 7-8 हजार साल पहले ही भारत में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसॉफी, जिसको एक कल्चरल मैनिफेस्टेशन कहा जाएगा, यह हजारों साल पहले की है। ऐसे तो भारत के अनेक प्री हिस्टोरिक साइट मिलता है जिसकी सोशल साइंस के ऊपर रिलेशन इंपैक्ट भी है। पैलियोलिथिक पीरियड की सिविलाइजेशनल पॉइंट भारत में कहीं ना कहीं मिलता है। यह सब मिलाए तो इस प्राचीन सभ्यता की समय उपयोगी स्थापना करने के काम पिछले 58 साल में भी ICSSR ने किया है। इसकी सफल प्रयास को मैं साधुवाद बताता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिसर्च और इनोवेशन ये जिंदगी की हिस्सा होनी चाहिए। मित्रों, हम लोग आज टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। हर एक 2 साल में एक नया साइकिल आता है। AI की साइकिल चल रहा है, क्वांटम की साइकिल हमारी दरवाजा पे दस्तक दे रहा है। टेक्नोलॉजी आज डिसरप्शन कर रहा है, नई पद्धति निकाल रहा है, नई उपाय, नई मानसिकता बना रहा है। विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी ये एक नई दुनिया बना रही है। उस समय में एक बहुत पुरानी डिबेट चल रहा है, उसमें सोशल साइंस की स्थान कहां है। साइंटिफिक इनोवेशन इकोनॉमिक रिलेशन से जुड़ती है, लोगों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से जुड़ती है, ईज से जुड़ती है। उस समय में हमारी सोशल साइंस की क्या संपर्क रहेगा। मेरे लिए मैं मानता हूं मित्रों, एक बॉडी के फिजिकल एस्पेक्ट और उसकी माइंड टेक्नोलॉजी होती है। उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर हार्डवेयर बॉडी पार्ट है, माइंड उसकी सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसकी बियॉन्ड भारतीय सभ्यता में कुछ चीजें, उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसकी आत्मा, उसकी सोल। हमारी सोशल साइंस भारत की जीवन प्रवाह की, मनुष्य की जीवन प्रवाह की आत्मा है। इस आत्मा को एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च आप आगे ले रहे हो, मैं आपको बधाई देता हूं। विशेष करके आज युवा शोध, प्रतिभा, रिसर्च, भारत कोई भी समाज में मित्रों बिना स्वाभिमान के, बिना आत्मविश्वास के, बिना साहस के आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज के जीवन में ऐसे ऐसे क्षण आता है जहां विस्मृति की परिस्थिति होती है। हु आर वी,
हम कहां से आए, हम कौन है, कहां जाएंगे, ये एक कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन में परिवर्तित होती है। उस समय में समाज की प्रबुद्ध वर्ग की दायित्व है मूल तत्वों को खोज निकालना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारे 1000 साल के इतिहास को समीक्षा करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है 1835 के उपरांत, जिस भारत एक समय में 200 साल पहले ग्लोबल जीडीपी की 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूटर था, आज हम कहां खड़े हैं? हमारी दृष्टि में पर्यावरण की दृष्टिकोण क्या था? हम तो इस सभ्यता में पंचामृत को विश्वास करने वाले लोग हैं। हमको कभी कभी वेस्टर्नर्स ने, हम पानी को पूजा करते हैं, वायु को पूजा करते हैं, पेड़ को पूजा करते हैं, धरती को पूजा करते हैं, हमको कभी कभी पिछले दिनों में मजाक किया गया है, ये लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन मित्रों, आज दुनिया क्लाइमेट कंसर्न से चिंतित है, सस्टेनेबिलिटी के नया नया उपाय खोजा जा रहा है। उस समय में हमारी समाज ने इसको इनबिल्ट करके रखा था। क्या ये समाज शास्त्र के विषय नहीं होनी चाहिए? ये डीप सोशल रिसर्च की बात नहीं होनी चाहिए? ये सारा व्यवस्था को, मैं तो एक दो उदाहरण और भी दे सकता हूं, ये सारा व्यवस्था को 1835 के बाद भारत को लंबे समय पराधीन करने के लिए मैकॉले ने एक रचना बनाई। और आज हम आजादी के उपरांत 78-79 ईयर्स के बाद भी उसकी छाया से मुक्त होना हमको चुनौती हो रहा है। उसी समय में आईसीसीआर ने युवा शोध रिसर्च, प्रतिभा रिसर्च स्कीम के माध्यम से डीकोलोनाइजेशन और भारत सेंट्रिक रिसर्च, स्वास्थ्य के बारे में भारत कैसे सोचता है, हम रिएक्टिव मेडिसिन में विश्वास करते हैं या प्रोएक्टिव मेडिसिन से विश्वास करते हैं, हमारे खान पान कैसे है, हमारी दिनचर्या कैसे है, हमारी समाज के कई लोग क्यों 7 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं, हमारे यहां उपवास क्यों होता है, ये सिर्फ रिचुअल्स है, बिलीफ है या उसमें साइंस है? ये सोशल साइंस की भारत सेंट्रिक रिसर्च की खोज की आवश्यकता है। मित्रों, आईसीसीआर लीडरशिप, रिसर्चर, न्यू सोशल इनोवेटर्स ढूंढने के काम कर रहा है। हमें मध्य युगीय इन्वेजन को, अग्रेशन को पीछे छोड़ते हुए, हाँ, पिछले दिनों में, पिछले भारत की डीएनए में किसी कालखंड में अगर हमें कुछ अच्छा चीज मिला है, हमने उसको आइसोलेशन में नहीं रखा है। मुगल पीरियड में हमको लगा कि भारतीय भाषा और अरबिक भाषा दोनों की एक मिश्रण होने की आवश्यकता है। उर्दू जन्म हो गई, उर्दू में भी रामायण महाभारत की भी लेख हुई। ये कहने का उद्देश्य, भारत कभी भी कुछ चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखा है या पैरोकियल दृष्टि से नहीं देखा। भारत में सभी लोग असिमिलेट कर पाए। हमारे वहां सोसाइटी की कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न रही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कभी विकल्प रूप नहीं लिया है। इसलिए मित्रों, हमारी सभ्यता में अनेक विश्वविद्यालय बहुत पुरानी है। हमारी गुरुकुल परंपरा, हमारी पाठशाला, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी पर्शियन सेंटर्स, ये कॉलोनियल पीरियड में विलुप्त प्राय हुई है। मैकॉले एजुकेशन सिस्टम इसको ध्वस्त किया है। हमें 1000 साल के इतिहास को इस युवा शोध रिसर्च प्रोग्राम के, युवा शोध कार्यक्रम के माध्यम से हमें बाहर ढूंढ निकालना पड़ेगा। हमें बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्चुअली डीकोलोनाइजेशन की रोड मैप बनानी पड़ेगी, जिसके आधार हमें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, स्लेवरी के माइंडसेट से बाहर आनी है, दासत्व की मानसिकता से हमें बाहर आना है। हमें भारत, भारतीय और भारतीयता, इसके ऊपर एक नई परिभाषा बनानी पड़ेगी। मित्रों, सारा विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजुकेशन, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। मित्रों, भारत में कभी कल्पना करिए, कृषि भारत की बहुत पुरानी अर्थनैतिक उपक्रम है। भारत के पुराने मंदिरों को देखिए,
उनकी वास्तुकला को देखिए, उनके आर्किटेक्चर को देखिए, वह निश्चित रूप में आज की विज्ञान की सारे विधा लगा था। यह सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सिस्टम एक मॉन्यूमेंट नहीं था, उसके पीछे एक फिलोसफी था, उसके पीछे इकोनॉमी था, इसके पीछे सर्कुलर इकोनॉमी था, इसके पीछे सोशल रिफॉर्म था। भारत एक होलिस्टिक समाज है, आइसोलेशन में या कॉन्फ्लिक्टिंग उपाय में काम करने वाला समाज नहीं है। ये सभी विषय भारत की नई शिक्षा नीति हमको पहल करती है। मित्रों, भारत की ज्ञान, भारत की आत्मा भारतीय भाषाओं में अंतर्निहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शोध को मैं इन दिनों में नेदरलैंड की आदरणीय राजदूत महोदय को मिलने के अवसर मेरे को मिला। मैंने सुना था, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है, स्कैंडिनेवियन कंट्री छोटे हैं, उनकी साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन प्रगति में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में इतना आगे क्यों है? मेरे मन में जिज्ञासा था। मैंने ऐसे ही उनको पूछा कि आपके वहां पढ़ाई किस भाषा में होती है? उन्होंने कहा कि 12वीं तक, 12 तक हमारे वहां डच में पढ़ाई होती है। चाइना आज इतने वैज्ञानिक उपक्रम में ऊपर है, चाइना की भाषा अनेक रीजनल भाषा है, लेकिन उनकी जो स्टेट लैंग्वेज है मैंड्रिन में पढ़ाई होती है। जापान में अनेक स्थानीय भाषा है, लेकिन पढ़ाई होती है स्थानीय प्लस उनकी जापानीज लैंग्वेज में। जर्मन में भी ऐसी स्थिति है। यूरोप के अनेक देशों में उनकी मातृभाषा में पढ़ाई जाती है। हम कॉलोनियल इंपैक्ट में एक मतिभ्रम हमारी हुई है, हमें हमारी मूल मातृभाषा से पढ़ने समझने से हम दूर हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें मातृभाषा आधारित रिसर्च करना है, इनोवेशन करना है, मनुष्य समस्या को समझना है तो उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। उसकी भाषा की अनेक शब्दों में उसकी फीलिंग ध्यान में आती है, कंपैशन ध्यान में आती है, और विशेष करके इसके काम सोशल साइंटिस्ट के उस जो ब्रिज बनाना। आफ्टर ऑल हमारी दुनिया मनुष्य सेंट्रिक है, करना पड़ेगा, ह्यूमन सेंट्रिक करना पड़ेगा। ह्यूमन के एक फिजिकल एस्पेक्ट है, ह्यूमन के एक इमोशनल एस्पेक्ट है। सोशो इमोशनल एस्पेक्ट को ढूंढ निकालने का दायित्व सोशल साइंस सेक्टर की है। ICSSR उस दिशा में काम करेगा, विशेष करके युवाओं को उस दिशा में काम प्रेरित करेगा, ये मेरा अपेक्षा है। अनेक विषय है, हमें यूरोसेंट्रिक फ्रेमवर्क से भारत सेंट्रिक रिसर्च को लाना पड़ेगा, विशेष करके सोशल साइंस में। हमारे सामने क्लाइमेट की चिंता है, हेल्थ केयर की चिंता है, शहरीकरण की चिंता है, माइग्रेशन एक नई चुनौती हमारे सामने आई है, फूड सिक्योरिटी हमारी एक चुनौती है। ये सारा विषय में सोशल इंपैक्ट क्या होगा, हमारी स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन ग्लोबल इकोनॉमी को क्या प्रभावित करने वाला है। मित्रों, 2 दिन काल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है देशवासियों को कमर कसने के लिए। विश्व की जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, ऊर्जा की जिस प्रकार चुनौती हमारे सामने है, ग्लोबल सप्लाई चेन जिस प्रकार से ध्वस्त हुई है, इसकी सोशल इंपैक्ट को समझना पड़ेगा। यह सिर्फ मटेरियल इशू नहीं है, पैसा बचाने की इशू नहीं है, इसकी सोशल इंपैक्ट है। हमने अभी अभी कोरोना को सामना किया है। कोरोना केवल डिजीज नहीं था, एक डिजॉर्डर था, सोशल डिजॉर्डर था। उस डिजॉर्डर को हम सब ने मिलकर आगे सामने किया। हमारी मेंटल हेल्थ हम कभी इतना चिंता नहीं कर रहे थे, लॉन्ग्स के बारे में इतना कॉन्शियस कभी हमने नहीं हुआ है। ये सारा हमको आवश्यकता पड़ी चिंतित होने के लिए। ये सब सोशल चैलेंजेस है। मित्रों, मैं मानता हूं भारत मनुष्य सभ्यता को समझने का एक लिविंग लैबोरेटरी है। इसलिए ICSR की ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसको कैसे हम एक नया फ्रेमवर्क में लेके आना। हमारी विज्ञान शिक्षा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इनोवेशन, ये एथिकल कैसे होगा, ये ह्यूमन सेंट्रिक कैसे होगा, इसके इंपैक्ट कैसे मनुष्य को खराब ना करे, इसकी दायित्व भारत की सोशल सेक्टर की, सोशल साइंस सेक्टर की है। और इसके ऊपर हमें एक हॉराइजेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। मैंने जैसे कहा, मैकोले के कारण हम एक यूरोसेंट्रिक सोशल ऑर्डर की विश्वासी रहे। हमारे वहां फिलोसोफर की कोई कमी नहीं है। हम पाश्चात्य की फिलोसोफर को नहीं पढ़ेंगे इसका अर्थ यह नहीं होती है, लेकिन हमारी जीवन दृष्टि को बढ़ाने के लिए
मैं अगर यह एक उदाहरण दूं, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन उसको भारत में लोकप्रिय करने में तुलसीदास जैसे अनेक महानुभावों की भूमिका रही, लोक भाषा में उसको पहुंचाना। ये सोशल साइंस से, सोशल रिसर्च की इंपैक्ट है, सहज लैंग्वेज भाषा में सहज तरीके से चीजों को रखने का। मित्रों, हमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित रचना बनानी पड़ेगी। हमारी एक दृष्टिकोण है, हमारी एक सोचने का तरीका है, हमारी परिवार की अवधारणा अलग है। हम अपने मोहल्ले में गरीब से गरीब आदमी को नाम से नहीं बुलाते हैं, हमारे एक संबंध उसके साथ है, वो हमारा भाई लगता है, नहीं तो चाचा लगता है, नहीं तो ताई लगता है, नहीं तो मौसी लगता है, नहीं तो कुछ ना कुछ लगता है। आत्मीय संपर्क है, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भारत सेंट्रिक एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। आज भारत की टैलेंट पूल विश्व के अनेक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इंजीनियरिंग कैपेसिटी में, आखिर कभी कभी आईसीसीआर को सोचना पड़ेगा, जैसे सीए जी ने आपको काम दिया, मैं आपको एक काम देता हूं। कभी सोचना पड़ेगा, दुनिया भर की धनी लोग अपना जीसीसी खोलने के लिए भारत क्यों आते हैं? ये एक इकोनॉमिक इशू केवल नहीं है, ये एक सोशल इशू है, ये सोशो इकोनॉमिक इशू है। मेरे को लगता है कि आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होनी चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा। मित्रों, हमें जैसे मैंने कहा कि विश्व की अच्छे मॉडल्स को कभी सोचना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मैं सोचता हूं, 2 देशों के बारे में मैं सोचता हूं, आखिर क्या सोशल कारण रही होगी, सामाजिक कारण रही होगी, 2 देशों की स्थिति आज जैसा है ऐसे है। 2 देशों के नाम मैं लेता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हुई 2 बड़े महाशक्तियों की पराजय के कारण, जर्मन और जापान। दोनों को मित्र शक्ति ने कुचल दिया। जर्मन को तो 2 टुकड़ा करके दोनों देश बांट लिए, 2 महाशक्ति अपने आपस में बांट लिए, लेकिन उसके बावजूद जर्मन ऑटोमोटिव्स में, इंजीनियरिंग कैपेसिटी में दुनिया की नंबर 1 देश रहा, मर्सिडीज वहीं बना। एक समय आया दोनों जर्मन की देश इकट्ठा हो गए, उसके पीछे सिर्फ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस नहीं था, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस था, सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था। हमें उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जापान परमाणु विस्फोट के बाद ध्वस्त हो गया, हिरोशिमा नागासाकी के कारण जापान सहमा गया, ध्वस्त हो गया, लेकिन आज भी विश्व में मेड इन जापान एक क्वालिटी की पर्यायवाची बना है। इसकी सोशल साइंस को ढूंढना पड़ेगा। तो भारत को अगर 2047 में आगे बढ़ना है तो भारत ये विषय को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आशावादी हूं, आईसीसीआर जैसे संस्था, और यहां मेरे को धनंजय जी कह रहे थे कि हमारी इच्छा है यहां एक ऑडिटोरियम बने। सुब्रत जी यहां बैठे हैं। सूरज जी, अगले 1-2 साल के बाद मेरा इच्छा है आईसीसीआर एक प्रकार अधिवेशन करे जहां एक अच्छा हॉल में हो। आप उनको मदद करिए, भारत सरकार मदद करनी चाहिए, मैं भी उसकी चिंता करूंगा। मैं मानता हूं बिना सोशल साइंस की प्राइमेसी से कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग अधिक जुड़े, उसमें घुसे, उस काम करें। श्री अरविंद ऐसे ही कहे थे, जब हमारी इंटेलेक्चुअल सेल्फ रिलायंस होगा तब जाके हमको अपेक्षित स्वतंत्रता मिलेगी, और बिना समाज शास्त्र के गहन अध्ययन से हमको इंटेलेक्चुअल सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाएगा। मटेरियल सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी हमको आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएगा। अगर बढ़ाता तो अमेरिका में इतने स्कूलों में गोलीबारी नहीं होता। कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक है, डेफिशिएंसी है। हमें इंटेलेक्चुअल आत्मविश्वास होना पड़ेगा, बौद्धिक आत्मविश्वास हमें होना पड़ेगा। हमारे पूरा विश्वास है मित्रों, विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, भारत की ओर लगभग 2/3 लोग अपेक्षा से देख रहे हैं। पिछले दिनों में कोरोना के काल में भारत से निर्मित वैक्सीन भारत में 225 करोड़ डोज से ज्यादा लगा। विश्व के 100 देशों में उसकी सप्लाई चेन पहुंची। ग्लोबल साउथ भारत की ओर देख रहा है।
पाश्चात्य की मॉडल दुनिया के अनेकांशों देश के लिए भी मॉडल नहीं बचा, वो मॉडर्न हो चुका है। मॉडल नहीं, मॉडर्न हो चुका है, एक्सपोर्टेशन की ब्रिज हो चुका है। लोग वहां डरते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, वो भारत को देखते हैं। इसलिए मित्रों, भारत की दायित्व है विकसित भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ की वसुधैव कुटुंबकम की बात को पूरा करने के लिए, विश्व भातृत्व को पूरा करने के लिए हमें डीकोलोनाइज रिसर्च करनी पड़ेगी, भारत सेंट्रिक रिसर्च करनी पड़ेगी। आखिर ये सभ्यता हजारों साल से, वैदिक काल से, महाभारत रामायण काल से आज तक, चंद्रयान हमने क्यों 600 करोड़ रुपए में पहुंचा दिया? ये कारण है, इसलिए मटेरियल साइंस नहीं है, इसके पीछे सोशल साइंस का कमिटमेंट क्या है। मेरे को जब हम सोमनाथन जी ने मिले, हमको कहा कि सर मेरे वहां कोई IITians नहीं है, ये सोशल कारण है। भारत की स्टार्टअप आज 2.5 लाख हो गया है। उस स्टार्टअप के पीछे भारत की ITI, पॉलिटेक्निक, AICTE एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, टायर 2, टायर 3 सिटी की इंजीनियरिंग कॉलेज की पराकाष्ठा। क्या कारण है? ये सब को आज भारत खाद्यान्न उत्पादन, राइस प्रोडक्शन में दुनिया के 1 नंबर देश बन गया। क्या कारण है? मैं अपील करता हूं ICCR के माध्यम से आप सभी को। ICCR तो एक अच्छा प्रयास किया है, लगभग अपना बजट बढ़ाई है, और बजट लीजिए धनंजय जी। भारत की नई पीढ़ी को, भारत की मूल आत्मा को समझने के लिए और रिसर्च कराइए, और प्रोजेक्ट दीजिए उनके हाथ में। भारत की आत्मा को निखारने का काम ICSSR पूरा करेगी। इसी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।